Hello dear students. Today we are going to discuss the next topic of our lecture series from the chapter Solutions, and our next topic is vapor pressure of ideal solutions. In the previous video we have discussed ideal and non-ideal solutions and the thermodynamic properties of ideal solutions. Today we are going to discuss the vapor pressure of ideal solutions, vapor pressure versus composition curves for ideal solutions, and some more topics. So let us move for the first topic, and our topic is vapor pressure of the ideal solutions. We know that at any temperature the molecules of liquids have a tendency to escape and come into the vapor phase. कि किसी भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सरफेस को छोड़ करके अपने सरफेस से ऊपर जा सकते हैं. दैट मीन्स सरफेस ऑफ लिक्विड से एस्केप करके वेपर फेज में जा सकते हैं. एंड अगर उनकी टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की है तो दे विल एक्सर्ट वेपर प्रेशर. दैट मीन्स दे पोजेस सम वेपर प्रेशर. सिमिलरली अगर हमारे पास किन्हीं भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशंस हैं, वोलेटाइल मीन्स दैट विच हैज़ अ टेंडेंसी टू गो इनटू द वेपर फेज, तो अगर किन्हीं भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन हमारे पास हैं तो उन दोनों ही लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है वेपर फेज में जाने की. इसका मतलब वो दोनों ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. इन दैट केस the total vapor pressure for the solution will be the sum of partial pressures of the two components. Suppose you have a solution which is made up of two volatile liquids A and B, then in that case the vapor pressure P of the solution will be equal to the partial pressure of A and the partial pressure of B. That means the P solution will be equal to PA plus PB. अब देखो हम पहले ये पढ़ चुके हैं, इफ़ वी हैव आइडियल सॉल्यूशंस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द राउल्ट्स लॉ. सो इफ A is volatile liquid, B is volatile liquid, in that case partial pressure of A in the solution will be equal to the mole fraction of A multiplied by the vapor pressure of pure A. Similarly the partial pressure of B in the solution, that is PB, that will be equal to XB multiplied with the vapor pressure of pure B. That means the total pressure of solution, that means P solution will be equal to, from the above equation, XA P naught A plus XB P naught B. At any other temperature, at a particular temperature, the values of pressure of solution, that means vapor pressure of solution, can be determined experimentally with the different mole fractions. That means for different values of A and B, P solution can be calculated experimentally. अब यहाँ पर जो P नोट A और P नोट B हैं, these are the vapor pressures of pure liquids A and B, और ये किसी पर्टिकुलर मॉल फ्रैक्शन पर हमें पता होती हैं क्योंकि ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स हैं. सेकेंडली वी कैन कैलकुलेट PA एंड PB फॉर डिफरेंट मॉल फ्रैक्शंस यूजिंग राउल्ट्स लॉ. तो यहाँ से हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वी कैन प्लॉट अ लाइन टेकिंग वेपर प्रेशर एट y एक्सिस एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स एट द x एक्सिस. अब अगर हम इस फिगर को देखें, लेट अस सी दिस फिगर. इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन. इन दिस फिगर वी हैव टेकन वेपर प्रेशर ऑन द y एक्सिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B on the x axis increasing from 0 to 1. If you see the point where xB is equal to 0, xB is equal to 0 means we are having two components A and B. अगर यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट जो B है उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द सॉल्यूशन इज हैविंग प्योर A. दैट मीन्स यहाँ पर उस सॉल्यूशन के अंदर B की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है. दैट मीन्स इस मोमेंट पर, इस इंस्टेंट पर वहाँ पर सिर्फ प्योर लिक्विड A प्रेजेंट है. and while we are moving
towards the right, the composition of B is increasing continuously, कि यहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और फाइनली वो जा कर के 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। दैट मीन्स इस पॉइंट पर A की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। तो यहाँ पर प्योर B है हमारे पास। अब प्योर A हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में, प्योर B हमारे पास है राइट हैंड साइड में इस फिगर में। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास प्योर A का वेपर प्रेशर और प्योर B का वेपर प्रेशर हम यहाँ पर लाइन लगा के डिनोट कर सकते हैं। एंड मैच द टू वेपर प्रेशर्स विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड लाइन दैट विल रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज P solution. Also match the point XA is equal to 0 with P naught A using dotted line and the point XB is equal to 0 to P naught B, that is also using a dotted line. अब यहाँ से अगर हम कहें कि हमें एक किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर पार्शियल प्रेशर या हम कहें वेपर प्रेशर बताना है किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का या हम कहें सॉल्यूशन का, तो वी कैन ईजीली कैलकुलेट यूजिंग दिस प्लॉट और वी कैन ईजीली फाइंड आउट, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर लेना है P ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी द सम ऑफ PA प्लस PB एंड PA आपके पास होगा XA इंटू P नोट A और PB आपके पास होगा XB इंटू P नोट B, जो आपने अभी अभी इक्वेशन से सीखा था। तो ये हमारे पास है जो डायग्राम हमें चाहिए था, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अब यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B। अब कुछ यहाँ पर आपको लिक्विड पेयर्स दे रखे हैं विच बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशंस at some definite temperatures. For example, N-hexane plus N-heptane at 30 degrees Celsius behave ideally. In the same way, if we are having an ethyl bromide and ethyl iodide at 40 degrees Celsius, that also behaves as an ideal solution. Now the next topic is the vapor pressure versus vapor composition curves for ideal solutions. अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम्स फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। कंपोजिशन जो यहाँ पर मेंशन की गई है दैट इज़ बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन लिक्विड फेज XA XB, इसके टर्म्स में आपको कंपोजिशन यहाँ पर दी गई है। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हमें कंपोजिशन लेनी है दैट इज़ द वेपर कंपोजिशन, कि हमें वेपर प्रेशर को वेपर कंपोजिशन से इंटरकनेक्ट करना है यूजिंग द प्लॉट्स और डायग्राम्स वी कैन से आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो देखो जो हमने फिगर 6.2 में कर्व्स ड्रॉ किए हैं, यानी कि इस वाले कर्व्स जो ड्रॉ किए हैं ये हमारे पास थे टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस पार्शियल वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर और द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स वर्सेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन। लेकिन ये हमारे पास जो मोल फ्रैक्शंस दे रखे थे वो हमें दे रखे हैं सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि XB की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो इनके वेपर फेज मोल फ्रैक्शंस होंगे एक्स एक्सिस पर हमें उनको लेना है एंड वाई एक्सिस पर हमारा सेम चलेगा, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हमारे पास है वो हम दे सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स को यूज़ करके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, दैट मीन्स YB, that will be equal to the partial pressure of B divided by the total pressure of the solution. That means YB is equal to PB divided by P total, and from Raoult's law PB is equal to XB into P naught B and PA is equal to XA into P naught A. Using these values
we can say P total is equal to XA P naught A plus XB P naught B. Now if we are to find out YB, then it will be equal to XB P naught B divided by XA P naught A plus XB P naught B. कि अगर हमें YB को फाइंड आउट करना है तो ऊपर हमारे पास आएगा कंपोनेंट B वाली टर्म्स और नीचे हमारे पास दोनों A प्लस B वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो अब यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन को XA से XB की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, देयरफॉर XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB। तो XA की जगह नेक्स्ट स्टेप में हमने पुट किया 1 माइनस XB। अब हमने XB वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और जो दूसरी टर्म्स हैं वो अलग से रह गई इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो XB की हर एक डेफिनेट वैल्यू के लिए हमारे पास YB की भी एक डेफिनेट वैल्यू होगी एंड ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी, दोनों वैल्यूज़ किसकी, मीन्स XB की एंड YB की, दे कैन नॉट बी द सेम एक्सेप्ट व्हेन P नोट A इज इक्वल टू P नोट B। यानी कि जो हमारे पास XB और YB हैं वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब हमारे पास दोनों प्योर लिक्विड्स के पार्शियल प्रेशर्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ XB के लिए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ YB और जो हमारे पास कंपोजिशन कर्व्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ये वाला, कि अगर हम y एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं, x एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोल फ्रैक्शन हम XB और YB यहाँ पर दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखेंगे XB कैसे है और YB हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब जो एक्चुअल कर्व है लिक्विड कंपोजिशन कर्व वो तो हम पिछली फिगर में ड्रॉ कर चुके हैं एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन P नोट A एंड P नोट B, बट इन द वेपर फेज द कर्व इज नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड it is found to be a curved line which is just below the solid straight line, and this curve is called the vapor composition curve. अब y एक्सिस पर वही है, डिफरेंट मोल फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं और ये मोल फ्रैक्शंस हमारे पास हैं कंपोनेंट B के लिए। तो अब देखो अगर हमें किसी एक कंपोजिशन ऑफ लिक्विड B पर बोला जाए फाइंड आउट इट्स वेपर कंपोजिशन, देन वी कैन फाइंड आउट दैट वेपर कंपोजिशन ऑफ B यूजिंग दिस डायग्राम ओनली। लेट अस सपोज XB इज गिवन टू बी 0.2, तो 0.2 को अपनी ऊपर वाली जो स्ट्रेट सॉलिड लाइन है उसके ऊपर मैच किया, वहाँ से एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन हमने ड्रॉ की और देखते हैं कि वो लाइन इस पर जो वेपर कंपोजिशन कर्व था उस पर कहाँ टच करती है और जहाँ वो लाइन टच करती है उस पॉइंट को हमने मैच कर दिया वापस से एक्स एक्सिस से यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आ गई, अब दिस विल बी द वेपर कंपोजिशन, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो देखो अगर हमारे पास XB की वैल्यू 0.2 थी, देन इन दैट केस YB इज़ फाइंड आउट टू बी 0.4। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि अगर इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है देन हाउ वी कैन डू दैट, कि YB और XB दोनों का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ से क्या होगा YB ओवर XB, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो पूरी की पूरी टर्म है वो डिनोमिनेटर में ही तो आ जाएगी और डिनोमिनेटर में अगर ये टर्म आ गई तो हमने फिर क्या किया फर्दर, यहाँ से XB P नोट B, कि P नोट B को तो हमने पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया P नोट B से, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को ही। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट B इज़ फाउंड टू बी मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट A, तो हमारे पास क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ B in its pure state will be greater than the vapor pressure of A in its pure state. Therefore, the term P नोट E by P नोट B, और यही टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, this term should not be equal to 1. That means this term is found to be less than 1. और अगर ये टर्म लेस देन 1 है तो हमारे पास
जो राइट हैंड साइड है वो पूरी टर्म हो जाएगी ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स वाई बी ओवर एक्स बी विल बी ग्रेटर देन 1 और वाई बी इज़ ग्रेटर देन एक्स बी. वी कैन कैलकुलेट दिस. तो अगर हमारे पास ऐसा केस आता है और बोला जाता है आपको कि you are given the mole fraction of a component in liquid state and you have to find out the mole fraction of that component in its vapor state, then आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है कि जितना आपको लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है उस मोल फ्रैक्शन से एक स्टैंडिंग लाइन खींचो अपनी लिक्विड कंपोजिशन कर्व के ऊपर. देन फ्रॉम देयर यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन mix that point to the vapor composition curve and then join that point with the horizontal line using a standing line, and this will be the vapor phase composition of that component. Now come to the next topic, that is deviations from ideal solutions. तो देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइडियल सॉल्यूशंस वी हैव टू जस्ट डू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. कि अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, अगर हम बात करें तो नेचर में कुछ भी 100% आइडियल नहीं होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिटी इज़ ओनली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं है, कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं होती है. तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं दे आर फाउंड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब लेकिन इनको भी फर्दर हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे. हमारे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इस टाइप के हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस से एक स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. दैट मीन्स वहाँ से थोड़ा सा डेविएट होते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो टाइप 1 को हम क्या कहेंगे? दोज विच शो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन. कि टाइप 1 सॉल्यूशंस जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं? वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियलिटी से थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं. दोज विच शो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ को जो 100% ओबे करेगा दैट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर वो 100% ओबे नहीं करता है दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज़ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो फर्स्ट टाइप हमारे पास हो गई विच शो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर दिस इज गिवन हेयर. अगर आप इसको देखो ध्यान से तो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन बोला है. पॉजिटिव डेविएशन मीन्स कि वो वहाँ से डेविएट कर रहे हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास आप लोग ये डॉटेड वाली लाइन देख रहे होंगे, दिस इज़ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, और एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए देखा जाए तो दिस सॉलिड लाइन इज़ फॉर द एक्चुअल सॉल्यूशन विच इज़ पास्ड अबव द स्टमक, अबव द डॉटेड लाइन. तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया एक एग्जाम्पल फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन. और ऐसा ही हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स के केस में है कि एक्चुअल में वो डॉटेड लाइन से हम मैच करते हैं, बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन स्मॉल पॉजिटिव, हमारे पास इनके लिए भी जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होंगे दे विल बी स्लाइटली अबव द डॉटेड लाइंस. तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. तो इस टाइप के लिए जो बेसिक एग्जांपल्स हैं दैट इज़ बेंजीन प्लस टॉल्विन, सेकेंडली वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, next type for the non-ideal solutions is the solutions which show large positive deviation from Raoult's law. ऐसे solutions जो Raoult's law से large positive deviation show करते हैं, and the figure is shown on your screen, and this figure says that from the ideal solutions dotted line the actual line is much more above the dotted line, and same is the case with pure components A and B. So we can say that these solutions shows
non-ideal behavior and it shows large positive deviation. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, दैट इज वाटर प्लस इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now the third type is the solutions which show negative deviation from Raoult's law, and the figure for this type of solutions is shown here. This is the figure कि एक्चुअल सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशंस होता है उसकी हमारे पास डॉटेड लाइन है, एंड एक्चुअल सॉल्यूशंस के लिए ये बिलो द आइडियल सॉल्यूशन लाइन एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन शोइंग स्मॉल नेगेटिव डेविएशन, या इसको सिंपली आप नेगेटिव डेविएशन भी बोल सकते हो. अब हमारे पास बात आती है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. Non-ideal solution showing negative deviation, that is water plus nitric acid and water plus sulfuric acid. Both these mixtures will act as a non-ideal solutions showing negative deviation. अब बात आती है what is the reason for this non-ideality of the solutions. तो अगर हम इस non-ideality का मेन रीज़न देखें तो हमारे पास जो रीज़न निकल करके आता है that is interactions, कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स A और B हैं, देन इंटरेक्शंस बिटवीन A एंड A क्या मैग्नीट्यूड था उनका, सेम द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स B एंड B. एंड द थर्ड, आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास क्या होता है, A और B के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होनी स्टार्ट होती हैं, एंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन एज AB इंटरेक्शंस. अब अगर हमारे पास A एंड B इंटरेक्शंस आर ऑलमोस्ट ऑफ द सिमिलर मैग्नीट्यूड, देन इन दैट केस द AB इंटरेक्शंस विल come into existence after mixing the two, and if these AB interactions are stronger than AA and B interactions, then in that case what will happen कि अगर AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, एंड इन दैट केस द सॉल्यूशन विल शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी. दूसरा, अगर हमारे पास आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरेक्शंस हैं दे आर वीकर देन दैट ऑफ AA एंड B इंटरेक्शंस, तो हमारे पास क्या होगा, इन दैट केस अगर वीक इंटरेक्शंस हैं इनके बीच में तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी रहेगी दूर दूर जाने की, एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विल नॉट शो एनी आइडियल बिहेवियर. तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन कब होगी, जब AB इंटरेक्शंस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी या वीक होंगी. जब AB इंटरेक्शंस AA और B इंटरेक्शंस से स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे पास वीक होंगी तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगी, और अगर AB इंटरेक्शंस वीक होंगी तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर आ जाएगी एग्जिस्टेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In the next video we will discuss further the next topics.